Now, in today's session, I'm going to take up the chapters from our second book. Like till now, we have done from the first book, and the chapters are now over. Now, I'm moving to the second book, that is India's External Relations. Right now, if you look into the current situation, because any question which you have in your boards may have a relevance to the present time also. ऐसा आया हुआ है. मतलब एक क्वेश्चन था, आई रिमेम्बर, दो इट वाज फ्रॉम द फर्स्ट बुक, बट द क्वेश्चन वाज अ रिलेशन विद रशिया एंड presently how we are dealing, though it was not in the part, but it came as a general question, a value based, competency based. So when we talk about politics and when we say government's policies, one of the very key policy is our foreign affairs. And if you look into the foreign affairs minister, external ministers, एक आपके एक्सटर्नल मिनिस्टर, सेकंड आपके होम मिनिस्टर्स एंड थर्ड आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ एनी गवर्नमेंट have to be very meticulous, because the entire sovereignty, the entire integrity of the country lies on them. और इसीलिए when we talk about politics, तो एक्सटर्नल रिलेशन या फॉरेन पॉलिसीज को डिस्क्राइब करना जरूरी होता है. So in this chapter, what were the backdrop? We have already been discussing the same thing कि India became independent at the backdrop of partition. So how at the international level we had shaped ourselves, how we had taken up the disputes, and how we had become self-sufficient in defense and nuclear capabilities. So that's about India's external relation. You have already done the timeline that in 47 we got the independence. That was the time when we got the independence. And 49 we had, मतलब इंडिया ने चाइना को एज अ कम्युनिस्ट चाइना रिकॉग्नाइज किया था. इट सपोर्टेड, मींस इट सपोर्टेड. And then there was China's annexation of Tibet, creating tension. We had the Panchsheel Agreement, which bound India and China not to enter into each other's sovereignty and to maintain that neighborhood relations. Then नाम was found. This is only a timeline because नाम हमारा जो आपके उसमें नहीं है, but it was one of the very important element of foreign relations. We had decided not to support either of the poles. Then to add, India was defeated in the Sino-Indian War, causing a dent. Then again, there was Indo-Pakistan War, which had hostilities, but Tashkent Agreement was there. 71 again, there was war. So you can see over a period of 10 years, India had to go with 3 wars. And also, this established the friendship treaty with USSR. But उसके बावजूद, if you look at 74, हमारा Smiling Buddha, that is first nuclear test. Then 98 हमारा second हमारा था. And then 1999 the Kargil conflict. तो ये जो हम इतना सारा हमने पढ़ा जो टाइमलाइन, what does it tell? That at this backdrop, इंडिया ने जो है अपने एक्सटर्नल रिलेशंस को कैसे एस्टैब्लिश किया था. मींस द रिलेशंस विद चाइना वाज गुड एट वन टाइम्स. पेपर में क्वेश्चन पहले आया था कि व्हाट वाज अवर रिलेशन विद चाइना बिफोर 65 एंड आफ्टर. तो 65 से पहले हमारा जो है रिलेशन विद चाइना वाज गुड. वी हैड साइन द पंचशील अग्रीमेंट. वी हैड दैट, वो हमारा एक बहुत फेमस स्लोगन था, हिंदी चीनी भाई भाई.
but the war had caused a dent. And if we talk about Pakistan, we had 3 wars. इन्फिल्ट्रेशन के अलावा भी हमारे 3 वॉर उनके साथ हो चुके थे. एक 65 वाला हो चुका था, 71 वाला, फिर कारगिल वाला. बट एट द सेम टाइम इंडियाज पोजिशन विथ फॉरेन अफेयर्स इन अदर एरिया हैज बीन वेरी गुड. तो इनिशियली इंडिया जो थी, इफ वी टॉक अबाउट वन, तो इंडिया, एज वी नो, हमने शुरू से एक ही चीज मानी थी, दैट वी वांटेड टू रिस्पेक्ट आवर सॉवरेनिटी. We will not unnecessarily interfere into others' affairs. We would always support peace and security, whether it is at the national level or at the international level. Secondly, we chose non-alignment because we did not want to enter into any military alliance. फ्रेंडली अलाइनमेंट एक अलग बात होती है, बट किसी एक पोल को सपोर्ट करने का मतलब होता है you are supporting their policies and you are agreeing to their policies which India strongly, sternly refused. And नाम के एक फाउंडर मेंबर थे आपके जवाहरलाल नेहरू. Jawaharlal Nehru, he was the prime minister and also the foreign minister. So he influenced India's stance on this area and regional cooperation. So when it came to China, पहला हमारा चाइना के साथ में जो था, we initially had a very friendly relation. Panchashil was signed, which said mutual respect for sovereignty, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, अपनी अपनी टेरिटरीज को हम लोगों ने डिमांड किया था, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट फॉर कोएग्जिस्टेंस. ये पेपर में आया हुआ है, पंचशील, 5 प्रिंसिपल्स. बट इन 62 the war over Tibet dispute resulted in loss for India. That was not a loss, that was a loss for India's internal and external way, because China जीत भी गया था. एंड चाइना ने जो एक दे हैड एलिगेटेड, हमारे ऊपर जो एलिगेशन था, दैट वी हैड एंटर्ड इनटू देयर, हमने इंटरफेयर किया था, वी हैड ब्रोकन द पंचशील एग्रीमेंट बाय हार्बरिंग दलाई लामा. हमने दलाई लामा को हार्बर करके जो है उनके इंटरनल में किया था, ये उनका एनेक्सेशन था. इंडिया शुड नॉट इंटरवीन. सेकेंडली, हमारा जो मिलिट्री और जो मतलब वैसे डेंट हुआ था वो भी था, एंड हिज उनको जो है इंटरनली in the results of election also he had the setback. With Pakistan, as I said, we already had 3 wars at that time. 47 infiltration, 65 that is Tashkent agreement, and 71 the Bangladesh. तो वहां पर अगर हम कहें तो इंडिया का पोजीशन अच्छा था, क्योंकि तीनों बार हम जीते थे. मतलब Tashkent agreement was mediated by World Bank, UN. It was international, but at the same time, it was also that we had agreed. Secondly, 71 was हमारे लिए, that was one of the historical event. Since Bangladesh was created, we had supported a nation to be created. तो इंडिया ने जो है कोशिश की, और इंडिया का स्टैंड व्हेन इट कम्स टू तिब्बत आल्सो, इट सेज कि तिब्बत को तिब्बतियंस ने उनसे शेल्टर मांगा था, एंड एज अ गुड नेबर दे हैड हेल्प्ड. दलाई लामा हैड sought the political asylum in India. Right now also बांग्लादेश की जो मतलब की प्राइम मिनिस्टर है मिसेस शेख हसीना, शी इज हार्बर्ड इन इंडिया. तो वैसे तो देखा जाए तो हम उसमें भी गलत ही है ना, सिमिलर सिचुएशन है. तो अगर हम देखें, उनके हिसाब से देखें तो हमने गलत किया है, लेकिन अगर हम अपने हिसाब से देखें तो अगर हमारे पास कोई शेल्टर के लिए आया है तो यू कैन नॉट रिफ्यूज. इट इज अप टू यू, यू कैन रिफ्यूज, बट इफ यू वांट ऑन अ गुड टर्म, दैट्स योर्स. So you cannot call it as mediation or you cannot call it as interference.
ऑन द अदर ग्राउंड अगर हम देखते हैं तो नाम का क्रिएशन था, तो दैट वाज अ पीरियड आल्सो ऑफ कोल्ड वॉर. सेकेंडली देयर वर प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, बट उसमें हम लोगों ने जो है अपना ऑटोनॉमी रखा, डेमोक्रेसी को हमने अपनाया. वी ट्राइड टू अकोमोडेट ऑल स्फेयर्स. इन द इनिशियल फर्स्ट जो आपके 3 इलेक्शंस थे उनमें तो देयर वाज नथिंग. The ruling party had been the winner. The confidence was there. And moreover, if we talk about the scientific, so according to the international treaties, we were not supposed to conduct the nuclear test, but India supported itself on the scientific and technological base. It did not want itself to establish as a nuclear state so that others are scared. It wanted to establish itself as a nuclear state so that it is able to advance in science and technology. That was a vision of the people, of the leaders at that time. And at that time, that was a time when so many scientific innovations were given importance. और इसीलिए हम लोगों ने जो है इवन इन बैकड्रॉप्स में भी, मतलब इससे क्या होता है कि जब आप कोई भी ऐसा काम करते हो ना जिसमें द इंटरनेशनल कम्युनिटी कैन इंटरवीन, यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग. आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है अपनी बात को कहने के लिए. नो नेशन कैन लिव इन आइसोलेशन. Any prime minister, any president, the person has to take up the pressure of everything. सभी चीजों का प्रेशर लेना पड़ता है. He is answerable and accountable. क्योंकि अगर कोई भी गलत चीज होगी तो nobody will say the person, the outsider had. हम बोलेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो होम मिनिस्टर थे वो सो रहे थे. So they have to tackle. Like अगर हम लोग पुलवामा अटैक का बोलते हैं तो there has always been a high price. मतलब बहुत प्रेस किया गया है कि जो भी हमने काउंटर अटैक किया था, जैसे हमने उस चीज को डील किया था, दैट वाज रिमार्केबल. वी नीड टू टेक अप बिकॉज वी आर अकाउंटेबल एंड आंसरेबल. And at that time, India conducted its nuclear test in 74, which established India as a nuclear state, though we were blamed that we did not adhere to the community. And secondly, 1998 में हमने दोबारा से किया था when Atal Bihari Vajpayee was the prime minister. And at that time, दोनों टाइम में हमारा था क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट. मतलब हम लोग इसको फर्स्ट यूज नहीं करेंगे. बट लेटर ऑन जो हमारे अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, ही मेड इट श्योर कि यस वी वुड नॉट, हम किसी को उठाकर हम जाकर खुद जाकर किसी पर अटैक नहीं करेंगे. बट इफ टाइम नीड्स, सिचुएशन नीड्स, then we may even take it for our defense. He made it sure to the foreign countries and to the external people that we are not scared. We don't want to take nuclear weapons in our hand. But if there is some danger, we would not even back out. ये क्वेश्चन पेपर में एक बार आया था इसलिए मैंने ऐड कर दिया इसको. अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये भी कहा कि ये मत सोचना कि हम डर के बैठे हैं. So that is how India's external relations have been maintained, and right now at the international level, India stands on a very good position. India's relation with all the countries, whether they are fighting among each other, we are having a cordial relation with each and every country. Israel ka under Prime Minister Rajiv Gandhi, we were the one who had first established the यहाँ पर जो है embassy खोली थी. बीच में बंद था, again it has been open. And right now, if you look into the calendars of the people, if you look in across, you will find that Indian citizens are welcomed. And many of the
countries, specifically the South Asian countries and other countries, have made Indian citizens visa free. ये जो विजा फ्री मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ना, क्लास 12, ये सिर्फ इसलिए बोल रही बता रही हूँ कि किसी कंट्री को बिना पर मतलब कि विजा के आप हमारे यहाँ आ सकते हो बोलना मतलब हमारा रिलेशन उनके साथ कितना अच्छा है, हम उस गवर्नमेंट पे कितना ट्रस्ट करते हैं. दिस शोज आर एक्सटर्नल रिलेशंस. India is part of so many summits. India has always supported the UN in international peace. India ने जब भी जरूरत पड़ी है पीस फोर्स भेजे हैं. India has supported its neighbor in maintaining peace. Like पाकिस्तान बोलते हैं तो बांग्लादेश के साथ जब हुआ था तो हमने तब भी कोशिश की. When Sri Lanka had the problem, हमने पीस कीपिंग फोर्स भेजने की कोशिश की. तो thus we have always supported. हमने अपने सारे नेबर्स के लिए सपोर्ट किया है, वेदर इट वाज म्यांमार, वेदर इट इज बांग्लादेश. सो दिस इज इंडियाज एक्सटर्नल affairs or foreign policy. The foreign policy of a country reflects its strength both in the domestic and world politics. क्योंकि पूरा हमारा जो इंटेग्रिटी है, हमारी जो सेफ्टी है ना, वो इस फॉरेन पॉलिसी पर ही है. इफ द फॉरेन पॉलिसीज आर वीक देन द कंट्री इज ऑलवेज इन द डेंजर ऑफ बीइंग अटैक्ड. राइट. तो एज पर द बोथ क्वेश्चंस आपके जो हैं, एक आध जो स्माइलिंग बुद्धा वाला है वो पेपर में आया हुआ है कि व्हाट वाज आवर फर्स्ट, हमारा क्या था फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट का नाम. पंचशील अग्रीमेंट कब साइन हुआ था, कौन सी कंट्री के बीच में साइन हुआ था. ताशकंद अग्रीमेंट किसके बीच में साइन हुआ था. देन आपका जो है कारगिल वॉर कब हुआ था. दीज आर सम ऑफ द वेरी व्हाट यू कॉल एज रिपीटेड वन. प्लस who was the first foreign minister, then what incident dented the relation between India and China, how was our relation before and अब कैसा है presently दोनों कंट्रीज ने जो है अपने अपने जो आपका बॉर्डर है उसको खत्म करने की, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसे खत्म करने के लिए दे हैव अग्रीड, बोथ द कंट्रीज हैव अग्रीड टू एंड अप देयर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट एंड मूव इनटू अ फ्रेंडली रिलेशन. Now, the second question, the second chapter which I have planned for today is challenges and restoration to Congress system. We have already done this 100 times. That what was the era of dominance of Congress? Congress का जो dominance वाला era है वो क्या था? ये हम बार बार पढ़ चुके हैं. But yes, Congress was a dominated party. That was always there. But there were times when this party was challenged. There were certain conflicts in between which led to the division of the party. And how did this system restore? तो पहली बात तो हम सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि कांग्रेस एक सिस्टम क्यों था. Like अब हम बोलते हैं बीजेपी इज अ सिस्टम नाउ वी डोंट कॉल इट एज अ पॉलिटिकल पार्टी, वी कॉल इट एज अ सिस्टम. ये आपके एंड में आएगा. Because now the people, the politics, everything revolves around that. उसी सिस्टम के अंडर हो रहा, मतलब कि everything is being confined. People agree there is a system of working. तो when हम लोग इससे पहले पढ़ चुके थे व्हाट इज द एंड, मतलब कि वन पार्टी सिस्टम. नेहरू जी की जब डेथ हुई 65, सो दैट वाज वन पीरियड विच हैड, अभी हम लोगों ने पढ़ा 62 में वॉर था, 65 में वॉर था, 71 में वॉर था. तो दैट एरा वाज अ डेंजरस, यू कैन से डिकेड, बिकॉज लड़ाई भी हुई. देयर वर, मतलब कि इंटरनली डोमेस्टिक उसमें भी प्रॉब्लम्स आई. सेकेंडली डेथ, उसके साथ चैलेंजेस आए कि हु शुड रूल, बिकॉज किसी ने इस चीज को एंटिसिपेट नहीं किया था दैट नेहरू जी जो है वो इतनी, मतलब इतनी जल्दी उनका
खत्म हो जाएगा, and suddenly there will be a time when the question, when we need to take up some decision. So that was also one problem. And then when the Congress system was challenged and when it divided, that was again. So within 1 decade, there were so many things. Or 60 May, India was dealing with poverty, inequality, communal problems हमारी चल ही रही थी, because 47 से 60 में बहुत ज्यादा फर्क तो आया नहीं था. And at that time, when there was a question, Nehru ji's death, what and who, दोनों क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है. So after Nehru ji's death, anonymously लाल बहादुर शास्त्री became the prime minister. और उसके पीछे इसीलिए था, जो उस वक्त में कांग्रेस प्रेसिडेंट थे के कामराज, उन्होंने इस बात को कंसल्ट किया था. एंड ही टोल्ड दैट एक तो लाल बहादुर शास्त्री वाज अ नॉन कंट्रोवर्शियल पर्सन, मींस नोबडी हैड एनी, उनके लिए कोई मतलब कि गलत वो नहीं था, एवरीबडी न्यू दैट. एंड सेकेंडली he had been the railway minister and he had taken up the, अपने ऊपर उन्होंने पूरा ब्लेम लिया था for an accident, which really is very remarkable agreement. तो ये दोनों चीजें जो थी वो लाल बहादुर शास्त्री को एक काबिल इंसान का नाम देती है. ये पेपर में आया इसलिए मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ. आई एम नॉट मतलब कि नॉट इन दैट वे. Now, when Lal Bahadur Shastri became the prime minister, again there were two very difficult problems. First, चाइना से वॉर हुआ. चाइना के साथ वॉर होकर हमारा इंटरनल पॉलिटिक्स डेंट हो गया, हमारा मिलिट्री एक्सपेंस ज्यादा हो गया था, इकोनॉमिक रिसेशन चल गया था, इंटरनली द मॉनसून्स वर नॉट देयर, सूखा पड़ गया था, ड्रॉट हो गया था, एंड 65 वॉर था. So there were, the country was in a turmoil externally and internally, बाहर से भी और अंदर से भी. And that time he coined up the very famous slogan, Jai Jawan, means support to the military, Jai Kisan, support to the agriculture. So this was how this he tried to solve. He had gone to Tashkent to sign the agreement to end up the war with Pakistan, which had been coined by the international agreement, and it was signed by Lal Bahadur Shastri and Pakistan's then Prime President Muhammad Ayub Khan. ये पेपर में आया हुआ है. Abruptly he died on 10 January. Nobody knew what happened, how he died. There are so many theories about that. अब next challenge फिर से आ गया. And the second challenge was, अब नेहरू जी के डेथ के within a span of 3 or 4 years 2 prime ministers. और ये ना हमारे लिए सचमुच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि नेहरू had been in the prime ministership for more than 47 से लेकर 62, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई थी 15 साल वो थे, तो लोगों को आदत हो गई थी. And now unfortunately 2 different people had come over as a prime minister. So India का जो policy, India का democracy, मतलब there was a question कि after Nehru will India be democratic? शास्त्री से नेहरू के लिए it was, there was a मतलब कि tough competition था. The reason, उस वक्त there was one more person, Morarji Desai, who had been the chief minister of Bombay state. He was a minister at the center. And Indira Gandhi के साथ में क्या था, एक तो she was daughter of Jawaharlal Nehru, कांग्रेस प्रेसिडेंट रही थी, and she was also working under शास्त्री जी. तो जब आपके मतलब there was a tie, she succeeded because the senior led जो आपके leaders थे, they supported Indira Gandhi.
अब उन लोगों ने क्यों सपोर्ट किया था? और यहां पर अगर कहानी बोलूंगी ना क्लास 12, तो सबसे बड़ी चीज है कि हमारे इंडिया का पूरा पॉलिटिक्स वहीं चेंज हुआ था। दे सपोर्टेड बिकॉज उनको लगा इंदिरा गांधी इज नेव, यंग, शी डजंट नो दैट मच, तो शी विल बी टेकिंग अप। मोरारजी देसाई अपने आप में ही वॉज अ वेरी स्टॉन्च पर्सनालिटी, तो मे बी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में वो सीनियर लीडर्स को रखेगी, तो दे विल बी हैविंग द कंट्रोल। बट इंदिरा गांधी वॉज अ डिफरेंट पर्सन। अब जब वो बनी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले ही शास्त्री जी के टाइम पर ही था। वी हैड द डेंट ऑफ वॉर, वी हैड द एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम। सो शी, मतलब कि शी, जो इकोनॉमिक आपका जो सिचुएशन था वो काफी खराब चल रहा था। एट दैट टाइम द फोर्थ जनरल इलेक्शंस वर देयर, एंड देयर वर डिफरेंट थिंग्स। कहीं पर आपका जो है हिंदू मुस्लिम का रायट था, इकोनॉमिक क्राइसिस तो चल ही रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट वाज ऑन इट्स पीक। क्योंकि इफ यू लुक इनटू द प्लानिंग कमीशन, अगर हम प्लान्ड डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो देयर वाज फर्स्ट एंड सेकंड के बाद थर्ड वाला जो था दैट वाज नॉट दैट मच इफेक्टिव, so there was also a need of planned holiday. So if we look into that area also, we were lagging. There were people from the communist and social parties जो कि struggle launch कर रहे थे, कहीं बंद कहीं हड़ताल। एंड इंदिरा गांधी ऑल्सो टुक दिस स्टेप टू डीवैल्यू इंडियन रुपी। उस वक्त में ना इंडियन रुपी, और अगर हम उसकी बात करते हैं ना व्हाट यू कॉल एज यूएस, तो दोनों को बराबर रखा जाता था। शी डिवैल्यूड इट बिकॉज उससे हमें नुकसान पहुंच रहा था। अब आया द डिफरेंसेस, कांग्रेस, नॉन कांग्रेस। कांग्रेस वॉज अ सिस्टम, there were people whom we call as opposition, उन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, और उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस को अगर हराना है तो हमें मिलना पड़ेगा। अब यहां पर गलती क्या हुई कि कांग्रेस को हराने के लिए, इंदिरा गांधी को हराने के लिए उन्होंने अपने वोट को तो साथ में लिया, लेकिन अपनी फिलॉसफीज को नहीं। उनका इस टर्म को वैसे तो राम मनोहर लोहिया ने दिया था, नॉन कांग्रेसिज्म। ये मैंने इसलिए उसमें डाल दिया है कि दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच कम्स इन योर वन मार्कर। ही वॉज द वन हु हैड लेड द सोशलिस्ट पार्टी, जो बाद में संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी था। तो ही वॉज द वन हु हैड advocated, coined this word non-congressism. When the elections result came, that was a political earthquake. You can see three answers I have written. 2 marker या 4 में आता है. First, without, it was the first election without Nehru. As I said, नेहरू की आदत हो गई थी, तो कांग्रेस जीत तो गया था बिकॉज ऑपोजिशन में कोई था नहीं। प्रॉब्लम क्या कि देयर वाज नो वन स्ट्रॉन्ग एज, और इसीलिए कांग्रेस जीत तो गया था, लेकिन जो वोट की टैली थी, दे वर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इट वाज इन द अर्लियर थी। एंड जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे लाइक कामराज, पाटिल, अतुल्य घोष, दे ऑल हैड लॉस्ट। देयर वर 9 states where Congress had lost. And in Tamil Nadu, if we talk, DMK came into power. That was a time when DMK came, it introduced, because वो टाइम वो भी था जब वो हिंदी वाला झगड़ा चल रहा था वहां पर। एंड अदर स्टेट्स नॉन कांग्रेस का कोएलिशन आया। बट द मेन थिंग इज इन तमिलनाडु इफ वी टॉक, डीएमके हैज द स्ट्रॉन्ग वो, और डीएमके के बाद एआईएडीएमके जो है इट हैज कम। बट इन अदर स्टेट जहां नॉन कांग्रेस था, वहां पर थिंग्स कुड नॉट बी द सेम। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वी कैन से व्हेन कोएलिशन जैसा एक वर्ड जो था वो इंडिया में आया था, नॉट फॉर्मली बट इट केम। उन्होंने एक बनाया था संयुक्ता विधायक दल,
लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने जो आपको बताया, उन्होंने जो है अपने वोट्स को तो साथ में कर लिया, लेकिन वो सिर्फ ये चाहते थे चलो मिलकर हम उसको धक्का देते हैं, लेकिन बाद में क्या करोगे भाई आप? What will you do once you come into the power? You did not have any ideology, and that was where ideology were incongruent. बिहार में जो एसवीडी था, उन्होंने मतलब एसवीडी बनाया था, विच इंक्लूडेड द पार्टीज लाइक एसएसपी, पीएसपी, एंड इन पंजाब इट वाज कॉल्ड एज पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, जिसमें दो ऑपोजिट पार्टी साथ में आए हुए थे जस्ट टू डिफीट कांग्रेस। एंड दैट इज, कभी भी ऐसा होगा ना तो we cannot run the government, and this is the political theory. If you want to come into power, you should have something better than the ruler, but if you don't have anything, you just want to push, that is not possible. अब कांग्रेस के लिए कुछ चीजें यही थी। पहली तो यही था that the other parties were incongruent, and दूसरा ये था कि defection was there, which gave this very famous one, आया राम गया राम। लेकिन ऑपोजिशन एक तरफ, कांग्रेस के अंदर ही स्प्लिट हो गया, कांग्रेस के अंदर ही स्प्लिट हो गया। एंड व्हाई दिस स्प्लिट हैपेंड? एज आई सेड इन द इनिशियल, द सीनियर लीडर्स जिनको हम सिंडिकेट बोलते हैं, दे सपोर्टेड कांग्रेस बिकॉज दे थॉट इंदिरा गांधी वुड बी taking the advice from them, but when they could not do it, so they were disappointed. वैसे देखा जाए तो कांग्रेस रिटेन द पावर because there was no substitute. Coalition could not do because they were not having any philosophy, any policy. In many of the states, president rule was there, but inside the Congress there was a division. बाहर को तो उसने इजीली हरा दिया, लेकिन अंदर वालों के लिए उसके लिए डिफिकल्टी था। एज आई सेड, द सिंडिकेट एक्सपेक्टेड इंदिरा टू फॉलो, जो नहीं किया। अब इंदिरा के साथ में जो है दो चीजें थी, उसको इंडिपेंडेंटली अपने आप को करना था, और कांग्रेस को दोबारा से खड़ा करना था एज अ होलसम पार्टी। और ये जो पावर स्ट्रगल था ना, मतलब वो चाहते थे कि वो पावर में आए एंड दे शुड कंट्रोल इंदिरा इनडायरेक्टली, वो और ये चाहती थी, दैट बिकेम एन आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल, दैट चेंज इनटू एन आइडियोलॉजी, मींस दैट created a drift between the people. दोनों तरफ से तरह तरह के इनिशिएटिव्स आ गए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 10 पॉइंट प्रोग्राम किया, जिसके अकॉर्डिंग उसने बोला कि शी विल बी nationalizing the banks, insurance, urban property, pay ceiling, PDS, सब कुछ। Initially तो it was supported, but later on they opposed it. And that, वहां पर फिर एक और स्टोरी आ गई। The president at that time, Zakir Hussain, he died, and there was a need for the presidential election. And normally presidential election जो है, that is a electoral college उसको लेकर आता है, and there is a proper nomination. So VV Giri was nominated, who was the vice president, who was outside to Congress, और N Sanjeev Reddy, who was the Congress person. अब आप सोचो कि कांग्रेस में रहते हुए मैं नॉन कांग्रेस को सपोर्ट कर रही हूं। दैट फर्दर डिवाइडेड द पीपल। Moreover, she had adopted the policy of privy purse। पेपर में आया हुआ है क्लास 12 privy purse क्या होता है। तो privy purse is the special privileges given to the kings, to the rulers who had annexed to India the princely states। उस वक्त में उनको दिया गया था, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इक्वालिटी, एंड इट सेज डोंट गिव एनी स्पेशल प्रिविलेज टू एनीवन।
And that is why under that even Jawaharlal Nehru was against Privy Purse and उसने उसको abolish करने का बोला था. उस वक्त में कांग्रेस प्रेसिडेंट हुआ, पहले तो इंदिरा गांधी थी, बाद में निजलिंगप्पा थे. उन्होंने बोला था दैट दे शुड सपोर्ट देयर कैंडिडेट, दैट इज कांग्रेस कैंडिडेट. एंड इंदिरा गांधी के रिक्विजिशन में स्पेशल मीटिंग हुई थी, दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड कांग्रेस आर. उसने कहा था कि यू शुड ओनली हेयर टू योर कंसाइंस, यू शुड नॉट टॉक अबाउट, आप कांग्रेस हो तो आपको कांग्रेस कैंडिडेट को सपोर्ट करना, ये नहीं होना चाहिए. आपको जो सही लगता है आप उसको सपोर्ट करो, चाहे वो कांग्रेस का कैंडिडेट हो या नॉन कांग्रेस का कैंडिडेट. And ultimately the result was in favor of VV Giri, that is the independent candidate, not Sanjeev Reddy, the official candidate. मतलब एक तरफ से देखा जाए this is right, एक तरफ से देखा जाए तो that is wrong. And this way there was a formalized support, क्योंकि लोगों का मानना था कि being a Congress candidate she supported and she nominated a non-Congress, and therefore निजलिंगप्पा ने उसको अपने पार्टी से एक्सपेल कर दिया. एंड उसने क्लेम किया उसका जो कांग्रेस है वही कांग्रेस है, शी इज अ वन. एंड दिस वे द कांग्रेस डिवाइडेड इनटू कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर. बाद में मतलब कि शी रीगेन्ड द कांग्रेस नेम, एज आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट प्रिवी पर्स जो उसने इलेक्शन इश्यू में रखा था. अब इवन दो शी वॉज एक्सपेल्ड, अब उसके साथ में क्या था, लेकिन वो शी वॉज कंटिन्यूइंग द ऑफिस, शी कैंपेन वेरी हार्ड. उसने वो गरीबी बचाओ गरीबी हटाओ एंड बहुत सारे ऐसे टर्म्स लिए थे. शी कॉइन्ड द 20-point प्रोग्राम. शी इवन कॉन्टैक्टेड द पीपल फ्रॉम ऑल द फ्रॉम द रूरल एरियाज, फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस, फ्रॉम द ट्राइबल. उसने जो है अपने डिपेंडेंट्स को करने के लिए शी, एंड 70 में लोकसभा डिसॉल्व हुआ because Congress split हो गया था, तो she said it should be dissolved, and the fifth elections were held in February 1971. एक तरफ within there was split, दूसरी तरफ there was grand alliance of the non-communist and non-Congress party. कांग्रेस वाले तो कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बन गए थे, और जो नॉन कांग्रेस थे they had fallen from the grand alliance. And Indira Gandhi had her agenda slogan, and it is a very famous one, जो मतलब कि गरीबी हटाओ, और नॉन कांग्रेस वालों का जो था वो था इंदिरा हटाओ. अब इंदिरा हटाने का वही जो पहले भी प्रॉब्लम थी वही प्रॉब्लम अभी भी था. इंदिरा को हटाएंगे, दूसरा आ भी जाएगा, लेकिन व्हाट इज द पॉलिसी? As I said, she generated the support from disadvantaged, landless, Dalit, Adivasi minorities, and of course, the outcome was in her favor. And she claimed that her Congress is the Congress and Grand Alliance could not come. And that was also, दूसरी बात क्या था, 71 में जब इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, which is one of the very historic हमारे लिए सक्सेस है, कि द पाकिस्तानी आर्मीज हैड टू सरेंडर. हर पिक्चर में एंड में दिखाते हैं उसको, दे हैड टू सरेंडर. एंड वो जो सरेंडरिंग था ना, दैट बिकेम अ favorable circumstance. She was called as statesman even by her oppositions. Introduction of all the reforms made her the protector of poor, underprivileged. और जो कांग्रेस था वो आपका, कांग्रेस सत्ते पर पावर में आ गया, बट द रियल कांग्रेस जो पहले था ना वो वापस नहीं आया. द सिस्टम डिड नॉट कम बिकॉज इंदिरा रीइन्वेंटेड द पार्टी. शी मतलब कि जो आपका था, एंड it was Indira Gandhi who did it, but it did not have that earlier one, जैसे factions थे जिसको कांग्रेस पहले सपोर्ट करता था, that was not there. This party had its own ideology, it had its own philosophy. It depended on the social groups and minorities. It did not now depend on the leaders. तो old वाला था वो सबको लेकर चल रहा था.
and it gave birth to many new problems, issues. दो कांग्रेस वापस आ गया, बट द सिस्टम हम जो कहते हैं ना, वो आपका वापस नहीं आता। और अब ऐसा बोला जाता है, नाउ इट इज सेड, like Congress was a system, now BJP has become a system. Because under BJP, there are so many other uh, parties who approve to its philosophy, though they may not agree, but they approve. So that was how Congress system was there. Congress became a system. Then it had to face the problems externally, internally. Two leaders died consequently, मतलब आपका जो है अगले अगले उसमें उनकी डेथ हुई. Then Indira Gandhi's her own vision, जिसकी वजह से कांग्रेस had to split. And there was also the rise of opposition, the rise of factions, the rise of what you call as coalition. Though it was a failure, but it came up. That period 71, 74 अगर हम देखते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, emergency वाला period, all those were the time when India faced. So that is challenges and restoration of Congress system. So with this, two more chapters we have completed. One is India's foreign policy and this one. फॉरेन से एक क्वेश्चन आपके आता है, इसमें से यू कैन एक्सपेक्ट वन मार्कर क्वेश्चन लाइक प्रिवी पर्स हो गया आपका. देन हु वाज अ कांग्रेस लीडर व्हेन शी वाज एक्सपेल्ड, निजलिंगप्पा. देन आपका जो है ग्रैंड अलायंस किसको बोलते हैं, उसके ऊपर आपका कार्टून से भी क्वेश्चन है. देन कांग्रेस ओ और कांग्रेस जो मतलब सिंडिकेट वाला है, वो तो लॉन्ग क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ है. यू कैन एक्सपेक्ट अ नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ऑफ कोर्स more weightage will be to the last one in the मतलब की जो politics in the recent developments in politics will be more having more weightage first and last में. But this chapter also has all these questions, right? So with this two more chapters we have completed. Any problem or any doubt, you can definitely come to me.